अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महरूख शहरियार और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। भारत ने जोग्राफियाई वसअत की गलत फहमी में मुहिम जोई की तो तवक्को से बढ़कर नुकसान उठाएगा। फील्ड मार्शल ने असली दुश्मन को दो टोक बता दिया है। पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा कि हमारे हथियारों की पहुंच से भारत का कोई कोना महफूज नहीं। भारतीय अस्करी क़यादत को ताकीद की कि एटमी माहौल में जंग की ख्वाहिश भयानक गलती साबित होगी। देरीना मसाइल हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका बातचीत और मुज़ाकरात है। भारत ने जोग्राफियाई वसअत की गलत फहमी में मुहिम जोई की तो तवक्को से बढ़कर नुकसान उठाना पड़ेगा। फील्ड मार्शल ने एक बार फिर वाज़े कर दिया है, असली दुश्मन को बता दिया। पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा कि हमारे हथियारों की पहुंच से भारत का कोई कोना महफूज नहीं है। भारतीय अस्करी क़यादत को ताकीद की कि एटमी माहौल में जंग की ख्वाहिश भयानक गलती साबित हो सकती है। देरीना मसाइल हल करने का सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका मुज़ाकरात में है। Wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions, even a minor provocation, without any qualms. अफगान अवाम तकरीब पर तरक्की और दायमी जंग पर बाहिमी सलामती को तरजीह दें। फील्ड मार्शल ने ताकीद कर दी। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि अफगान तालिबान ने समर को यकीनी बनाई कि इनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। उनका मजीद कहना था कि जैसे रिवायती जंग जीती वैसे ही प्रॉक्सी और इनके हामियों को भी मलिया मेट कर देंगे। Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. इसके अलावा फील्ड मार्शल ने फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का देरीना मौक़िफ़ एक बार फिर से दोहरा दिया है। काकोल में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा कि दो रियासती हल के उसूली मौक़िफ़ पर अब भी कायम है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि ऐसी फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहते हैं जिसका दारुल खिलाफा अल कुद्स शरीफ हो। उन्होंने मुतालबा किया कि जंगबंदी के बाद फ़लस्तीनियों तक इमदाद की फराहमी को मुमकिन बनाया जाए। Efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. Pakistan expects the ceasefire to continue, followed by a smooth flow of humanitarian relief and reconstruction of Gaza for its people to be able to live peacefully in their homeland. For a just resolution of the dispute, Pakistan stands by its principled stance on the indispensability of the two-state solution and the need for an independent, sovereign and viable state of Palestine based on pre-1967 war borders with Al-Quds Sharif as its capital. Palestine's pain and Kashmiri's subjugation remain festering wounds on the conscience of humanity. एबटाबाद के पीएमए काकुल में 152वीं लॉन्ग कोर्स समेत मुख्तलिफ कोर्सेज की पासिंग आउट परेड हुई। तकरीब का मंजर दीदनी था और जज्बा वतन परस्ती से लबरेज था। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में जवानों के हौसले जज्बे आज़म का शानदार मुजाहरा पेश किया गया। मादर वतन के सिपाही कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक और संग मील अबूर कर गए। पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे। फील्ड मार्शल की आमद पर हाजरीन ने खड़े होकर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। उन्होंने परेड का मुआयना किया और कैडेट्स को सलामी दी। पीएमए काकुल में मुनक़िदा तकरीब में 152 लॉन्ग कोर्स
37वां टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स और 26वां लेडी कैडेट कोर्स पास आउट हुआ। पासिंग आउट परेड में इराक, मालदीव, यमन, फलस्तीन, माली, श्रीलंका और नाइजीरिया समेत दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स ने भी हिस्सा लिया। नौजवान कैडेट्स ने शानदार मार्च पास्ट किया और वतन अजीज से वफादारी और कौम की खिदमत के अज़्म को दोहराया। तकरीब में पाक फौज के सीनियर अफसरान, गैर मुल्की सिफारतकारों और अहम शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। पास आउट कैडेट्स ने तरबियत मुकम्मल करने के बाद PMA काकुल में अपने फराइज संभाल लिए। इस वक्त बड़ी खबर आपको देंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी हैं। कामयाब ऑपरेशन में 2 खवारिज जहन्नुम वासिल किए गए हैं। बताया जा रहा है कि भारी तादाद में असलहा भी बरामद हुआ है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से बात करेंगे। सलमान, मुस्तकिल तौर पर हम देख रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाइयां जारी हैं और दुश्मन को जेर किया जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ताज़ा तरीन कार्रवाई जिसकी हम बात कर रहे हैं बन्नू के इलाके मुगल कोट सेक्टर में की गई है और इसमें 2 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए ने कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के हवाले से बताया है कि मारे जाने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक फितना अल खारिज के तारिक खिची ग्रुप की तश्कील से था और इस कार्रवाई के दौरान फितना अल खारिज का अहम सरगना तारिक खिची और जो हकीमुल्लाह और टाइगर नामी दहशतगर्द है, बुनियादी तौर पर इन दोनों को हलाक किया गया और उनके कब्जे से एक बड़ी मिकदार के अंदर हैवी वेपन्स भी बरामद किए गए हैं। खारजी दहशतगर्द तारिक खिची की तश्कील जो है पिछले 2 साल से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुतहरिक थी, तो इस लिहाज से भी ये सिक्योरिटी फोर्सेज की एक बड़ी कामयाबी है कि तारिक खिची जैसे खारजी दहशतगर्द को, जो कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के साथ साथ जो तालिबान है उनके लिए भत्ताखोरी में भी मुलव्विस था, उसको हलाक कर दिया गया है। और ये सिक्योरिटी फोर्सेज की इस इलाके के अंदर एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के अंदर होने वाली कामयाबी है, जिससे इलाके में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के ऊपर काबू पाने में मदद मिलेगी। ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। इसराइल ने हम दुश्मनी तर्क न किए गजा पर फिजाई हमला कर दिया। एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद हो गए। हमास ने वाक़ई की मजम्मत करते हुए जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी पर इसराइल से हिसाब लिया जाएगा कि उधर हमास ने मज़ीद यरहमालियों की बाकियात इसराइल के हवाले कर दी। साथ रफा क्रॉसिंग खोलने का मुतालबा किया गया। इसराइल ने अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। फिजाई हमले में गाड़ी पर मिसाइल दाग दिया। जहरियत का निशाना बनने वाली गाड़ी में सवार अफराद गजा शहर के इलाके अल जैतून लौट रहे थे। शहदा में 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल हैं। हमास ने वाक़े की मसम्मत करते हुए कहा, जंगबंदी के बावजूद इसराइल हमले नहीं रोक रहा। सेहूनी फौज ने दानिस्ता तौर पर निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। हमास ने एक और मुग़वी की बाक़ियात इसराइल के हवाले कर दी। आलमी इदारों से अपील की कि लाशें मलबे तले दबी हैं, निकालने के लिए भारी मशीनरी भी दरकार है। खदशा जाहिर किया कि मलबे तले 10,000 लाशें मौजूद हैं, जिनमें फलस्तीनी और इसराइली मुग़वी दोनों मौजूद हो सकते हैं। साथ अपील की गजा को गजा और अद्वियात की शदीद किल्लत है, इमदाद की फरहमी के लिए रफा क्रॉसिंग खोली जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल इमदाद की फरहमी की राह में रुकावट बना हुआ है। दिलखराश मनाजिर हैं। इसराइल से गजा आने वाली लाशें सेहूनी फौज की बर्बरियत का मुंह बोलता सबूत बन चुकी हैं। कई लाशों पर बेईमाना तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। कई लाशों से तो आज़ाद तक चुरा लिए गए। जंग के बादल छटने के बाद गजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तस्वीर भी दुनिया के सामने आई है। तालीमी इदारा अब खंडरात बन चुका है। सेहूनी फौज गजा में नस्ल कुशी कर रही थी और जेर हिरासत फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही थी। इसराइल से लौटने वाली हर लाश जुल्म और बर्बरियत की दास्तान सुना रही है। फलस्तीनी वजारत सेहत ने दिल दहलाने वाले इंकशाफात कर दिए। हालत यह है कि वर्षा लाशों को शनाख्त करने से कासिर हैं। दुआ कर रहे हैं कि इस हालत में किसी दुश्मन को भी उसके प्यारे का जस्त खाकी ना मिले। फलस्तीनी हुक्काम ने मुतालबा किया है कि घनौने जुर्म की तहकीकात के लिए बैनुल-अक़वामी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जाए। इसराइली फौज ने गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान रेड क्रॉस के जरिए 120 फलस्तीनियों की लाशें हवाले की हैं, जिनमें से बेशतर ये हालत निहायत अबतर थी और इन पर कत्ल और तशद्दुद के वाज़े आसार मौजूद थे। दूसरी जानब 2 साला बमबारी ने गजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी को भी तबाही और बर्बादी की तस्वीर बना दिया। वो इदारा जहाँ 17,000 तलबा ज़ेरे तालीम थे, आज खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। गजा में जंगबंदी माहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। इंसानी हुकूक की तंजीम ने कहा कि गजा में जंगबंदी के बावजूद नस्ल कुशी जारी है। एमनेस्टी की सरबरा एग्नेस कैलामार्ट ने मुतालबा किया कि यूरोपीय यूनियन इसराइल से तिजारती मुआहदा मुअत्तल करे। जोर दिया गया कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर तिजारती मुआहदा जारी रखना नस्ल कुशी के मुतासरीन पर जुल्म करार दिया जाएगा। मज़ीद इस मुतालिक आपको बताएं कि इसराइल से गजा आने वाली लाशें सेहूनी फौज की बर्बरियत का मुँह बोलता सबूत है।
कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 10 में खौफनाक हादसा। ऑक्सीजन बाउसर की टक्कर से शहरी जाम बहक हो गया। साबिर 8 बहनों का एक लौता भाई और 2 कमसिन जुड़वा बेटियों का बाप था। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को आग भी लगा दी। ऑक्सीजन ट्रक से गैस लीकेज पर खौफ व हिरास भी फैल गया। ऑक्सीजन ट्रक से गैस लीक होने पर खौफ व हिरास फैल गया। रेंजर्स और पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सूरत हाल पर काबू पाया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक लियाकताबाद 10 नंबर पर अटक पंप के करीब हादसे में मोटरसाइकिल सवार साबिर मौके पर ही दम तोड़ गया। लवाहिकीन के मुताबिक साबिर घर की किफालत के लिए 2 नौकरियां करता था। हादसे के वक्त वो दूसरी ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला था। हादसे के बाद मुश्तइल शहरियों ने बाउजर को आग लगा दी। पुलिस ने बाउजर को लिफ्टर की मदद से तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया, जबकि ड्राइवर की तलाश जारी है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने आलमी बैंक और IMF के सालाना इजलासों में शिरकत के 5वें रोज़ मुनक़सिम दुनिया और माली मसाइल की फराहमी के मौजू पर आलमी फोरम में शिरकत की। वाशिंगटन DC में वज़ीर ख़जाना ने आलमी मईशत को बढ़ती हुई तिजारती रुकावटों, तवानाई की कीमतों में कमी जैसे दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़जाना ने अमरीका के साथ जारी तिजारती मुज़ाकरात, चीनी क़यादत से मुलाकातों और सऊदी अरब के साथ नए सिक्योरिटी इंतजामात और CPEC 2 के आगाज़ को पाकिस्तानी मईशत के लिए मुस्बत जुग्राफियाई अवामिल करार दिया। मौसमियाती तब्दीली और पाकिस्तान के लिए एक वजूदी चैलेंज है जिससे निपटने के लिए मुश्तरका इक़दाम ज़रूरी है। रुपए तक पहुँच गई। शहरियों ने हुकूमत से सब्जियों और फलों की कीमतें सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फ़रोग़ कराने का मुतालबा किया है। तफसीलात क्या है, अफजाल अब्बासी से जानते हैं। जी अफजाल। लाहौर शहरियों की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करने लग गई हैं और टमाटर जो हैं वो 600 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं, जिस पर शहरी जो हैं वो खासे परेशान हैं और ज़िला इंतज़ामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने पर। एक ख़रीदार हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे जैसे कत्ल हो रहे हैं जो गरीब अवाम है, तो इनका हाल कोई नहीं है, तो ये जैसे चाहते हैं कस्टमर को कत्ल करते हैं और बदतमीजी इनका शुगल है। लेना है ले लो, नहीं लेना तो जाओ। ये देखिए, मैंने ये ग्रीन वाले एप्पल लिए हैं, ये 250-300 मिल रहे हैं, जबकि ये इससे पहले 50 रुपये 80 रुपये मिलते होते थे। और बनाना का रेट वैसे 100 बताते हैं लेकिन 250-300 तक दे रहे हैं। तो प्राइजें जो है ना वो कंट्रोल में नहीं हो रही। कोई ख़रीदार जब कोई चीज़ परचेज़ कर रहा होता है उससे पूछा करेंगे ये रेट कितने बढ़ाकर वसूल कर रहे हैं। थैंक यू। बिल्कुल, यहाँ पर ख़रीदारों का ये कहना है कि जो दुकानदार हैं वो सरकारी रेट लिस्ट पर जो है वो फल फ़रोख्त नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो है वो मनमाने दाम जो हैं वो सब्जियों और फलों के वसूल कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सानहा कारसाज को 18 बरस बीत गए हैं। 18 अक्टूबर 2007 के सानहा की पीपल्स पार्टी 18वीं बरसी मना रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सानहा में जाम बहक अफराद को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि उनके नाकाबिल शिकस्त हौसले, गैर मुतज़लज़ल वफ़ादारियाँ और जमहूरियत के लिए अजीम कुर्बानियाँ काबिल सताइश हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि उस दिन लाखों लोगों ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वतन वापसी पर तारीख़ी इस्तकबाल किया था। बरसी पर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने तहसीन के पैगाम जारी किए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। सानहा कारसाज को बताया जा रहा है कि 18 साल बीत चुके हैं। 18 अक्टूबर 2007 की ये बात है कि ये अफसोसनाक सानहा रिपोर्ट हुआ था। लबनान की अदालत ने लीबिया के मारूफ रहनुमा मुअम्मर कज़ाफ़ी के बेटे को $11 मिलियन की ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। मुअम्मर कज़ाफ़ी के सबसे छोटे बेटे हुनैबल कज़ाफ़ी को 2015 से लबनान में बग़ैर किसी मुकदमे के कैद रखा गया है। जज ने ज़मानत पर रिहाई का हुक्म दिया था, साथ ही हुनैबल कज़ाफ़ी पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। लबनान की कौमी खबरसा एजेंसी ने मजहबी रहनुमा मूसा अल सदर के अगवा से मुताल्लिक़ केस में कज़ाफ़ी की ज़मानत के फैसले की तस्दीक की है। कज़ाफ़ी के वकील लॉरेंट ने फैसले को ज़ालिमाना करार देते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के तहत है और बड़ी ज़मानत की फ़ीस अदा नहीं कर सकता। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करेंगे। कराची में दिन का मौसम गर्म और खुश रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हवा में नमी का तनासुब 57% रिकॉर्ड किया गया, जबकि शुमाल मशरिक़ में 3 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मौसम का हाल बताने वालों ने बताया है कि हफ्ते तक शहर में मौसम खुश रहने और बारिश ना होने का इम्कान है।
इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।